We will continue further. In your textbook, there is one more topic called intermolecular attraction forces. See, about intermolecular attraction forces, in fact, we have learned in the beginning of this chapter itself. We talked about van der Waals molecular force of attraction. What happens in any state of matter, whether it may be solid, liquid or gas, when the two molecules, when they combine and form, when the two atoms, they combine and form a molecule. We have lots of molecules like this. This kind of molecule, when come near to each other, then there does exist weak force of attraction among them. They attract each other, and that force of attraction is known as van der Waals force of correct or not? Why does this van der Waals force of attraction does exist? होता ऐसा है कि इसके जो न्यूक्लियस होते हैं हर एक मॉलिक्यूल के जो न्यूक्लियाई है, they attract the electrons which are on the periphery of this. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स को ये अट्रैक्ट करते हैं. एक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन दूसरे के मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, like that. Are you following this? So that attraction is known as van der Waals force of attraction. That is known as intermolecular attraction forces. Let's see from your book. Scientist van der Waals mentioned a weak attraction force existing between the molecule on the basis of the study of deviation from the ideal behavior of gas. We have studied about this in chapter number 2, the deviation of ideal gas behavior. The existence of this weak attraction force cannot be explained by any other chemical attraction force. ये जो weak attraction force है, it's not like any other chemical bond. It's neither covalent bond nor it is ionic bond. It is special bond. Okay, different kind of attraction. So ये attraction को बोलते हैं van der Waals force of attraction. It is called van der Waals attraction force. This phenomena is universal. Universal का मतलब ये हो गया वो हर एक फिजिकल स्टेट में रहेगा, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो. You will find them, it's everywhere present. There is a presence of van der Waals attraction force in components of ionic compound as well as in covalent compound. The dimension is very less. उसका जो वैल्यू है बहुत ही कम है, 42 किलो जूल प्रति मोल है, 42 किलो जूल पर मोल. करेक्ट or not? In relation to other attraction force, दूसरे attraction force के कंपैरिजन में ये attraction force काफी weak है, is very less. And not only that, it does exist. अगर मॉलिक्यूल का बीच का जो डिस्टेंस है, अगर हम ये डिस्टेंस की बात करते हैं, दो मॉलिक्यूल के बीच के डिस्टेंस, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, it should not be more than 4.5 एंगस्ट्रॉम. 4.5 एंगस्ट्रॉम या उससे लेस होगा, देन van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट होगा. अगर उससे ज्यादा हो जाता है, देन देयर इज नो van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. It should be equal or less than 4.5 angstrom. बराबर छे. The electrons on the surface of the one molecule experience attraction of the nucleus of the other molecule. Hence, van der Waals attraction force is produced as the strength of this attraction force is different. याद रखना, जो ये अट्रैक्शन फोर्स हाइड्रोजन में H2 में है, डेफिनेटली Cl2 में उससे अलग होगा, एंड डेफिनेटली में O2 में उससे भी अलग होगा. Every molecule has different van der Waals force of attraction. That's why they have different boiling point and melting point. जो H2 का boiling point melting point है, वो O2 का नहीं है, बराबर ना, वो Cl2 का भी नहीं है. Is this understood? समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ आपको? Okay. The van der Waals force of attraction depends upon shape of molecule, number of electrons in molecule, contact surface area, average intermolecular distance. About this we have already discussed in the beginning of the same chapter.
एंड दैट्स व्हाई वी हैड आल्सो डिस्कस वन केस कि भाई अगर हम बात करते हैं फॉस्फोरस विच इज P4 एंड नाइट्रोजन विच इज N2, इन दोनों में काफी मेल्टिंग पॉइंट का या बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है. नॉर्मली फॉस्फोरस डज एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म whereas nitrogen does exist in gaseous form. We know about this, correct or not? Is it fine? We are going to continue further. See, apart from the intermolecular attraction forces, we need to study about the hydrogen bond. What do we mean by hydrogen bond? Let us understand. See, मेरे पास यहाँ पे ये I'm drawing one H2O का molecule. H2O के molecule के अंदर as we know कि दो हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन के एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं लाइक दिस, करेक्ट और नॉट? ये H2O का मॉलिक्यूल है. थोड़ा और अच्छी तरीके से ड्रॉ कर देता हूं, करेक्ट और नॉट? एंड ऑल ऑफ अस वी आल्सो नो कि ये पार्शियली नेगेटिव रहेगा जो ऑक्सीजन है, क्योंकि उसके पास दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है. ये पार्शियली पॉजिटिव भी रहेगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है. एम आई राइट और रॉन्ग? और ये नॉर्मली एक मॉलिक्यूल है आपके पास H2O का. अभी होता क्या है, इफ वी हैव वन मॉलिक्यूल, जब पानी लेते हैं तो ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू टेक ओनली वन मॉलिक्यूल. हम एक ही मॉलिक्यूल पानी का नहीं लेते. देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ आजू बाजू में. तो ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया, ये सातवां हो गया. Suppose there are plenty of molecules of H2 are near to each other like this. What happens when this positively charged, rather say partially positively charged hydrogen atom comes near to the partially negative charged oxygen having a non-bonding pair of electron, then इनके बीच में और एक अट्रैक्शन होता है. ये हाइड्रोजन इसके नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है एंड उसकी वजह से यहां पे माफ करना, ये हाइड्रोजन के बीच में हो गया, ये वाला ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ऐसे बॉन्डिंग होता है. दिस बॉन्डिंग इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसके लिए सर्टेन थिंग नेसेसरी है. पहली चीज, एक तो हाइड्रोजन होना जरूरी है. सेकेंड थिंग, इट शुड बी बॉन्डेड विथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. हाइड्रोजन एटम चाहिए आपको जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा होना चाहिए. दैट्स व्हाई दिस बॉन्ड बिकम्स पोलर बॉन्ड. नॉट ओनली पोलर बॉन्ड, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके पास एक नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटलीस्ट वन नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए. जब ऐसा होता है तब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा. जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है. इन दिस केस वन H2O molecule is forming 4 hydrogen bond. You can see that there are 4, 1, 2, 3 and 4. Every H2O molecule can form 4 हाइड्रोजन बॉन्ड. यहां पे ये जो है ऑक्सीजन ने 2 यहां पे बना रखे, 2 बनाने बाकी वो बनाएगा. एवरी H2O molecule can form how many हाइड्रोजन बॉन्ड? 4. रिमेंबर दिस. वो हमेशा कितने बनाने वाला है? 4 बनाने वाला. जरूरी नहीं है कि ये H2O में ही हो, H2O के अलावा भी होता है. जरा ध्यान से देखते हैं. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. Nitrogen, oxygen and fluorine, they are strong electronegative elements. When such elements combined with hydrogen atom through covalent bond, hydrogen, nitrogen and fluorine, covalent bond, the electrons combined by sharing in covalent bond remains dragged towards the more electronegative element. चाहे यहाँ पे ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो या फ्लोरीन हो, जब वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं देन ये इलेक्ट्रॉन पे ड्रैग हो जाती है ऑक्सीजन यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर, एंड देन द बॉन्ड बिकम्स पोलर. thus partial positively charged hydrogen atom of one hydride मतलब H2O की बात कर रहे हैं. one hydride का partially positive charge of hydrogen gets strong attraction bond
between with one more electronegative element of other hydride, which is called hydrogen bond. हाइड्रोजन बॉन्ड याद रखना, इट इज वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड. ये कोवेलेंट बॉन्ड से हाइड्रोजन बॉन्ड वीक रहेगा, बट वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो स्ट्रांग रहता है. बट वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो स्ट्रांग रहता है. आर यू फॉलोइंग दिस? विल कंटिन्यू फर्दर. द डेफिनेशन ओवर हियर, द attraction force produced between electronegative elements having non-bonding electron pair with a positively charged hydrogen atom is called hydrogen bond. Is this fine? Are you following me? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये H2O का उन्होंने बताया, NH3 में भी होता है. Let me explain it to you. Now, similar kind of hydrogen bond we can see in ammonia also. देखो ये अमोनिया का एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा अमोनिया का मॉलिक्यूल है. नाइट्रोजन के पास नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए है. हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड पोलर बनेगा, ये पार्शियली नेगेटिव बनेगा, ये पार्शियली पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 3 टाइम्स नेगेटिव. तो दूसरे अमोनिया के मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है. यू कैन सी दैट अमोनिया में भी एक अमोनिया मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जैसे वाटर का एक मॉलिक्यूल बना रहा था. करेक्ट और नॉट? ये अमोनिया के अंदर है. उसी तरीके से HF के अंदर देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर. ये HF का एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा मॉलिक्यूल, ये चौथा मॉलिक्यूल. यू कैन सी ये 5वां मॉलिक्यूल. दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड जो डॉटेड लाइन से आपको दिखाया गया है. करेक्ट और नॉट? आपको समझ में आ रहा है? यहां पे एक चीज आपने नोटिस की हो तो इस तरीके से कि नॉर्मली जो ये बॉन्ड बना रहे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, उन तीनों का हाइड्राइड बना रहे NH3, H2O, HF. बराबर. ये जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन अपने ग्रुप के, रिस्पेक्टिव ग्रुप के पहले एलिमेंट है. सिंस दे आर फर्स्ट एलिमेंट, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहती है. उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहती है, इसलिए जब वो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं तब वो काफी अच्छा पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव बॉन्ड बनाते हैं. माफ करना, नेगेटिव यहाँ पे, पॉजिटिव यहाँ पे. एंड उसकी वजह से दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएंगे. बट उसी ग्रुप के लाइक अगर हम फॉस्फोरस के हाइड्राइड की बात करें विच इज PH3, नाइट्रोजन का हाइड्राइड था NH3, जितना हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग NH3 में उतना स्ट्रॉन्ग PH3 में नहीं होगा. जो पहले एलिमेंट है NH3, H2O एंड HF, वो काफी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं. NH3 और PH3 की कंपैरिजन करोगे तो NH3 स्ट्रॉन्गर. H2O और H2S की बात करेंगे तो H2O ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा. HF और HCl की बात करें तो HF ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा. इसमें ऐसा है, एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, देखो यहाँ पे बात करते. NH3, H2O and HF in their liquid state possesses strong hydrogen bond. Hence their boiling points and melting points are very high in expectation to those of hydrides of the other element of the same group. अपने ही ग्रुप के हाइड्राइड से इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं. कई बार हमें ये क्वेश्चन भी पूछते हैं. यू मे राइट डाउन ओवर हियर, H2O is in liquid form whereas H2S is in gaseous form, though they are hydrides of elements of same group. आप लिखिए इसको. See, as I was talking to you, so the first element के hydrides जो है, first element के hydrides जो है, they
have higher melting point and boiling point, and because they have hydrogen bond in them. And that's why the question was over here that H2O is in liquid form whereas H2S is in gaseous form, though they are hydrides of the same element, element of the same group, एक ही ग्रुप के एलिमेंट होने के बावजूद भी. बाय द वे हाइड्रोजन बॉन्ड जो होती है उसकी जो एनर्जी होती है 100 किलो जूल पर मोल रहेगी, विच इज हायर देन वंडर वाल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन. वंडर वाल 42 है. बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड ऑल्सो we have seen the density of water is maximum at 277 Kelvin. 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी की डेंसिटी सबसे ज्यादा है. नॉर्मली ऐसा होता है कि सॉलिड की डेंसिटी अपने लिक्विड वाले पार्ट से ज्यादा होती है. अगर सेम सब्सटेंस इफ इट डज एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म एज वेल एज इन लिक्विड फॉर्म देन सॉलिड हैज अ हायर डेंसिटी, बट पानी के केस में उल्टा है. वाटर का लिक्विड फॉर्म H2O हैज हायर डेंसिटी देन द वाटर का सॉलिड फॉर्म H2O आइस, and ice floats on water. The density of water being more than that of ice floats on water. We have studied about this in chapter 5 of semester 1. जब हाइड्रोजन बॉन्ड उस टाइम पे बताया गया था, उस टाइम पे आता है. Ice is a solid crystal of water having hydrogen bond. उसके बाद और एक पॉइंट, आइस का केस के बारे में बात कर लिया. वन मोर पॉइंट है, नॉर्मली बाकी सब जगह पे अगर आपके पास सॉलिड होता है तो सॉलिड हैज अ हाइड्रोजन बॉन्ड मैक्सिमम एक्सेप्ट वाटर. वाटर के अलावा बाकी सब सॉलिड फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्ड इज द मैक्सिमम एंड द लिस्ट इन गैसियस स्टेट.